Hello students, let's move on to the next topic in a syllabus children. As you can see on your screen, the name of the topic is Say's Law of Market. Children, whatever the classical theories that we study in economics, which were basically developed into the 18th and the 19th century, तो classical economy जो थे उनमें से the prominent names children, they were basically like David Ricardo, then John Stuart Mill, Alfred Marshall, then Arthur Cecil Pigou, okay, Jean Baptiste Say. I think these were the classical economists. Okay, so whatever the accumulation of ideas had taken place, they were basically developed into the 18th and the 19th century. Okay. Now, some among the concepts that we need to learn children if you want to understand the law of market or the Say's law of market. First of all, in economic children, we basically come across one word that's known as full employment. Achha, many of you must be feeling like, sir, what is full employment? If you take it literally, it means all the people are employed. But here children, in economics, full employment would actually have a slightly different meaning. Let me tell you a few types of unemployment first, then I'll tell you what is the meaning of full employment. Children, unemployment, which basically stands for a situation in which a person who is physically fit to work, mentally he is prepared to work, he is ready to work at whatever salary he gets, but then also he is not finding a reasonable job. Now that particular situation children in economics is referred to as unemployment. It's the joblessness. But unemployment children at a further level, it would be of various types. We have a voluntary unemployment and involuntary unemployment. Children, voluntary unemployment means a person wants to remain unemployed by choice. He doesn't want to work children. Might be he expects a higher salary, or the job doesn't suit his qualification, or he has inherited. बहुत सारे लोगों के पास है ना, चलो बहुत सारा पैसा होता है कि उन लोगों का एक डायलॉग होता है ना कि लेकर सर काम करने की क्या जरूरत है, बाप ने बहुत छापा हुआ है, आराम से खाऊंगा करके. तो he is voluntarily unemployed. But situation children in which a person is ready to work, काम करने के लिए रेडी है. अच्छा, आप जो पगार दोगे उसमें भी वो काम करने के लिए रेडी है. बट देन ऑल्सो इफ ही इज नॉट फाइंडिंग अ जॉब, then that particular situation children in economics would be referred to as involuntary unemployment. That means a person is ready to work but is not finding a job. So what is full employment? Full employment children is the situation where there is no involuntary unemployment. मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं मिलेगा बच्चों जो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा है. ऐसा सिचुएशन जब गायब हो जाता है तो उसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है. सो ऑल हु आर एबल टू वर्क फाइंड वर्क. शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो आप? ऑल हु आर एबल टू वर्क फाइंड वर्क. दैट इज कॉल्ड अ फुल एम्प्लॉयमेंट. एंड फुल एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. इट कुड गो एट अ हायर लेवल टू ऑल द रिसोर्सेस. जैसे कि अपना एक क्लासरूम है बच्चों लोग जिसमें 60 बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, बट प्रेजेंटली इफ यू फाइंड देयर आर ओनली 30 स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन दैट क्लास. तो बच्चों लोग हम लोग लेस देन कैपेसिटी ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो? अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ, जिस दिन वहां पे 60 बच्चे बैठ के पढ़ेंगे देन वी कैन रिफर टू इट एज फुल एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, इफ आई एम एबल टू वर्क फॉर 8 hours in a day and I am finding a job only for 4 hours, then it's my unemployment. If a machine can produce 1000 units in a day, but because there is less demand in the market, वो machine से हम लोग से 500 goods produce कर रहे हैं, तो children it will be known as the unemployment. Okay, so full employment is a situation where there is no involuntary unemployment. अच्छा, वहां पे थोड़ा सा voluntary unemployment हो सकता है बच्चों लोग, जहां पे एक आध बंदा काम ही नहीं करना चाहता है, या फिर there could be some frictional unemployment. What is frictional unemployment? Children, frictional unemployment is a phenomenon or is a situation in which people are unemployed on a temporary basis. As you all know children, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो casually employed होते हैं. जैसे कि एक कारपेंटर है, उसको एक घर का कुछ कारपेंटर फर्नीचर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, देन ही वाज एम्प्लॉयड देयर फॉर 8 days. उसके बाद में फिर पता है 4 दिन उसके पास कुछ काम ही नहीं था,
अच्छा, and then he goes for a job again, but that is casual unemployment. But what's frictional unemployment, children? It's like, I am taking a lecture. जैसे मैं lecture ले रहा हूँ, अच्छा 10 मिनट पढ़ाया मैंने, और सपोज फॉर एग्जांपल के लिए सडनली लाइट चला गया. अच्छा, जैसे लाइट जाता है तो बच्चे लोग खुश हो जाते हैं, बोले कि चलो बच गया आज. बच्चे खुश, सर दुखी हो जाएंगे क्योंकि सैलरी नहीं मिलेगा. अच्छा, लेकिन जैसे आप पैकअप कर ही रहे थे बैग्स, वैसे हमने देखा कि लाइक वापिस से लाइट आ गया, तो आप दुखी और मैं खुश. ओके. अच्छा, आपने देखा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट. चिल्ड्रन, दैट इज रिफर्ड टू एज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि लाइक कुछ टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन चल रहा था, सडनली दे अंडरस्टूड कि लाइक रॉ मटेरियल्स ओवर, अभी नया स्टॉक रॉ मटेरियल का आने में 2 दिन लगेंगे, तो 2 दिन के लिए आप क्या हो जाओगे, अनएम्प्लॉयड. तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल हो सकता है, इनवॉलंटरी हो सकता है, सॉरी फ्रिक्शनल हो सकता है, वॉलंटरी हो सकता है, तो भी फुल एम्प्लॉयमेंट होता है. लेकिन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. ठीक है. सो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट a few words that I told you, children. Some names I told you in the beginning, they were related to some classical economists: David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, Arthur Cecil Pigou, and J.B. Say. This is spelling error there, children. It's J.B. Say, Jean Baptiste Say. Acha. Along with that, children, I told you like what is the meaning of full employment. Acha. Then I told you what exactly is the meaning of involuntary unemployment. बंदा काम करने के लिए रेडी है, काम नहीं मिल रहा है. अच्छा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा काम है लेकिन बंदे को काम करने का ही नहीं है. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लाइट चले जाना. अच्छा, सो ऑल पीपल हु आर विलिंग टू वर्क कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट. जो लोग काम करने के लिए रेडी है, जो सबको काम मिलता है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या रिफर करते हैं, चिल्ड्रन? इट इज सेड दैट देयर एग्जिस्ट व्हाट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए, बट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस व्हेन पीपल रिफ्यूज टू वर्क एट द गोइंग वेज रेट और द करंट वेज रेट, मतलब लोग काम करने से इनकार करते हैं. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चे लोग? व्हेन पीपल आर टेम्पररीली आउट ऑफ वर्क, इट माइट बी ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द लेबर मार्केट. अच्छा, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि लाइक वर्कर्स वहां पे पहुंच नहीं पा रहे. अच्छा, सीजनल नेचर ऑफ वर्क, अच्छा जैसे कि फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो सकता है, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी या फिर मशीन खराब हो जाना, इग्नोरेंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब जॉब्स आर देयर मेनी टाइम्स. व्हाट हैपेंस यू नो पीपल, आप रोते रहते हो कि लाइक काम नहीं है, काम नहीं है, लेकिन काम होता है, आपको पता नहीं होता कि काम है करके. क्या? अच्छा, नाउ विद ऑल दिस meanings that I told you, now we can just move forward and understand what exactly is the meaning of Say's law of market. ठीक है. आगे जाके बच्चे लोग आप जब भी पढ़ोगे तो कहाँ पे आपको ये वर्ड दिखाई देगा, सेज लॉ, तो इमीडिएटली आप समझ सकते हो कि लाइक ये सेज लॉ होता क्या है. सो चिल्ड्रन, सेज लॉ वाज बेसिकली इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक प्रोपोजिशन दे से. ठीक है. वन ऑफ द फ्यू मैक्रो इकोनॉमिक प्रोपोजिशंस वाज सेज लॉ ऑफ मार्केट. जीन बैप्टिस्ट से, ये बच्चे लोग एक इकोनॉमिस्ट थे, ही बिलोंग टू फ्रांस. अच्छा, तो 1803 में उन्होंने सिस्टमैटिकली बच्चे लोग ये लॉ को डेवलप किया था. अभी सवाल आता है कि बच्चे लोग ये लॉ एग्जैक्टली है क्या, व्हाट द लॉ सेज. द लॉ इज वेरी सिंपल चिल्ड्रन. इट सेज दैट सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड. सेज लॉ स्टेट्स दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. आप बोलोगे सर मीनिंग क्या होता है इसका? Okay, let me tell you with some examples like what this law actually means. Children, supply can create its own demand. It means whenever we are indulged or whenever we are involved in any productive activity, कोई भी बच्चों लोग प्रोडक्शन का काम जब हम लोग अंडरटेक करते हैं, तो आप जब एक फैक्ट्री डालते हो, फिर उसके अंदर कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना चालू करते हो, तो आपके माइंड में कभी कभी ये डाउट आता रहेगा कि अरे ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं इसका मार्केट में डिमांड आएगा क्या नहीं आएगा. तो सेज ने ऑब्जर्व किया था कि डोंट नीड टू वरी अबाउट डिमांड. तुमको डिमांड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर तुम सप्लाई कर रहे हो तो वो सप्लाई अपना डिमांड खुद ही पैदा करेगा. दैट मीन्स यू सप्लाई एंड डिमांड विल ऑटोमेटिकली विल बी देयर. अब ले सर कैसे, कोई जादू है क्या? मतलब सप्लाई अपना डिमांड खुद ही बनाता है. हाँ,
इट वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन चिल्ड्रन कि whenever any producer carries out any production, क्या बोला है, whenever any producer carries out any production, क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चे लोग? ऑब्वियसली टू थिंग्स, इधर इट्स गुड्स और इट इज सर्विसेज। तो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को जॉब देंगे, फैक्टर्स को यूज करेंगे, तो उसकी वजह से लोगों के हाथ में क्या तैयार हो जाएगा बच्चे लोग? इनकम। जैसे कि बच्चे लोग देखो कि मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, अच्छा रिलायंस ने उसको भाड़े पे मांगा, मैंने दे दिया, अच्छा वहां पे वो लोग कुछ प्रोडक्शन चालू कर दी चीजों का, अच्छा वो प्रोडक्शन होने के बाद में उन्होंने वो चीजें मार्केट में लाई, अच्छा लेकिन उन्होंने मेरे को रेंट भी दिया बच्चे लोग उस जगह को यूज करने का। अभी उन्होंने वो प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए, मुझे रेंट दिया, अभी वो रेंट के पैसे से मैं वो चीजें खरीद सकता हूं ना बच्चे लोग, इफ आई रिक्वायर देम। मतलब आपने एक बात नोटिस की, उन्होंने सप्लाई किया है तो उन्होंने किसी को खरीदने का ताकत भी दिया है बच्चे लोग। आज अगर एक आध बंदा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक आध कोचिंग क्लासेस में काम कर रहा है वहां पे, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ का, अच्छा व्हेन इज वर्किंग द चिल्ड्रन, वहां पे कुछ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, यस। अच्छा सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी तो हो सकता है कि जो बंदा वहां पे काम कर रहा है खुद भी पढ़ता है, अच्छा तो सर उसको सैलरी देते हैं महीने का, फिर बाद में वो सैलरी में से वो अपने फीस का इंस्टॉलमेंट भरता है। आपने देखा, आप किसी को एक सर्विस दे रहे हो लेकिन आप उसको खरीदने का ताकत भी दे रहे हो बच्चे लोग। एक आध बच्चा है, 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम हो गया तो डैडी ने बोला था कि लाइक मैं तुमको एक लैपटॉप लेके देता हूँ करके। अभी वो जो डैडी है वो HP के मतलब फॉर एग्जाम्पल शोरूम में ही काम करते हैं, अच्छा वहाँ पे एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है सब फैक्ट्री में, अच्छा फिर बाद में मार्केट में आएगा HP का लैपटॉप, अच्छा ये बंदा जाके खरीदता है, लेकिन वो खरीदने के लिए पैसा जो यूज करा वो भी तो HP ने उसको दिया हुआ है। हाँ अभी आप ये मत बोलना कि सर उस डेल का लैपटॉप खरीदा, तो इट्स अ जनरलाइज स्टेटमेंट चिल्ड्रन। तुम प्रोड्यूस करोगे तो तुम किसी को खरीदने के लिए लायक भी बनाते हो, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग हियर चिल्ड्रन कि द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल जनरेट इनफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू डिमांड वॉट एवर इज प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन करते वक्त आप कुछ इतना पैसा लोगों के हाथ में तैयार करा के दोगे कि तुमने जो प्रोड्यूस किया है उसको कोई ना कोई खरीद लेगा। अच्छा इसका मतलब ये भी है कि डिमांड का डेफिशिएंसी जनरली आपको फील नहीं होगा। डेफिशिएंसी वर्ड का मतलब होता है बच्चों लोग शॉर्टेज, तो तुमको डिमांड का शॉर्टेज कभी महसूस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया बच्चों लोग कि जनरली देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रोड्यूस कभी होता नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उसको खरीदने के लिए भी तो किसी न किसी को तो तैयार किया है आपने पैसा देके। हाँ बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन देयर वुड बी एनी काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, ओके, क्योंकि एक्सेस सप्लाई होता नहीं है। एक्सेस सप्लाई होगा कैसे ना, अभी अभी तो हमने बोला जितना सप्लाई करोगे उतना डिमांड होगा। So there is no excess supply of goods over demand. That means children, demand and supply will always be equal. Demand और supply हमेशा equal ही होते हैं, clear? अच्छा, so that's the basic concept that we have children, what is known as the Say's law of demand. Now children, most of you are aware that there are two different types of economies that have evolved over the years. एक होता है बच्चों अपना बार्टर इकोनॉमी एंड देन वी हैव गॉट अ मॉनेटरी इकोनॉमी। सो टुडेज लेक्चर चिल्ड्रन वी विल एनालाइज कि जो सेज लॉ ऑफ मार्केट होता है ये बार्टर इकोनॉमी में किस तरीके से चलता है। सो लेट मी टेल यू दिस, बट बिफोर दैट डू यू रिमेंबर चिल्ड्रन व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ बार्टर इकोनॉमी? यस, आप सबको पता है, दैट इज चेंजिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अदर गुड्स। तो गुड्स लेने का और गुड्स देने का, तो उसको हम लोग बार्टर सिस्टम करके बोलते हैं। बच्चों बार्टर सिस्टम एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है इन द सेंस कि लाइक यू कुड हैव, आज भी बच्चों लोग ऐसे प्लेसेस होते हैं विलेज साइड में जहाँ पे एक आध व्यक्ति आता है कुछ चीजें लेने का और उसके जैसे कि चावल लिया और उसके बदले में कुछ अनाज खरीदा, या फिर आप ऐसे भी करते हो कि किसी के खेत में जाके काम करने का और वो तुम्हारे खेत में आके काम करेगा बाद में। दैट मीन्स देयर इज नो मनी विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजर, ठीक है। अच्छा, तो इन द ओल्डर टाइम्स चिल्ड्रन पीपल दे डिपेंडेड अपॉन बार्टर इकोनॉमी। सो ओरिजिनल फॉर्म में बच्चों लोग ये जो सेज लॉ है इट इज एप्लीकेबल इन द बार्टर इकोनॉमी वेयर गुड्स आर अल्टीमेटली सोल्ड फॉर गुड्स। ये बच्चों लोग बार्टर सिस्टम का डेफिनेशन आता है, ठीक है। बच्चों लोग बार्टर सिस्टम में जहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आध फार्मर है चावल उगाता है, एक आध पॉटर है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो ये लोग जब चीजें प्रोड्यूस करते हैं तो इनके सामने दो ही चीजें होती है, एक
या फिर दो ही एम्स होते हैं, या तो वो लोग उस प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करना चाहते हैं या फिर किसी और के साथ उसको वो लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं. सो इधर दे वांट टू कंज्यूम और दे वांट टू एक्सचेंज. क्या बोला है? इधर दे वांट टू कंज्यूम और दे वांट टू एक्सचेंज. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस चिल्ड्रन, कि या तो मैं उसको खुद यूज करूंगा या तो फिर किसी और को दूंगा. इसका मतलब कि ज्यादातर मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड होता है गुड्स का, वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करेगा. द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स. इसका मतलब ये हो गया जितना प्रोडक्शन होता है उतना सप्लाई भी होता है. तो इट मीन चिल्ड्रन की ओवर प्रोडक्शन कभी नहीं होने वाला है. कैसे होगा बच्चों ओवर प्रोडक्शन? तुमने या तो खुद के लिए बनाया हुआ है या तो फिर किसी और को देने के लिए बनाया हुआ है. अच्छा, तो खुद यूज करोगे दूसरे को दोगे तो स्टॉक को तो खत्म होने वाला ही है. सो अच्छा, बिकॉज सप्लाई ऑफ गुड्स विल ऑलवेज और विल नॉट एक्सीड द डिमांड एज अ होल. सप्लाई कभी भी डिमांड से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम जितना सप्लाई करोगे उतना डिमांड होगा मार्केट में बच्चों लोग. हाँ, बाय चांस कभी गलती से बच्चों लोग अगर थोड़ा सा सरप्लस हो गया या फिर शॉर्टेज हो गया, क्या हुआ? शॉर्टेज या फिर सरप्लस. तो इन दो सिचुएशन चिल्ड्रन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि इट इज ओनली अ टेम्पररी फेनोमेनन. क्या बोला? इट इज ओनली अ टेम्पररी फेनोमेनन. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि सपोज कि एक आध फार्मर है, थोड़ी जमीन पे वो चावल उगाता है, थोड़ी जमीन पे वो गेहूं उगाता है. अच्छा, फिर उसको क्या पता चला कि गेहूं का शॉर्टेज हो रहा है करके, तो क्या करेगा? जहां पे चावल उगाता था वहां पे वो गेहूं उगाना चालू कर देगा. मतलब ही विल शिफ्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस गुड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इन ग्रेट डिमांड. जैसे कि अभी मैंने बोला ना कि व्हीट का डिमांड ज्यादा है, चावल का डिमांड कम है, तो क्या करेगा? अच्छा, वो चावल का जो प्रोडक्शन होता था वहां पे वो रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेगा और जो चीज ज्यादा डिमांड में उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा. ठीक है? सो इन दिस वे चिल्ड्रन, in a barter economy one can supply a commodity or service to the market only as a demand for another commodity or service. तो आप एक आध प्रोडक्ट या फिर सर्विस मार्केट में दे सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुमको या तो कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस एक्सेप्ट करना पड़े. इसका मतलब क्या हो गया बच्चों लोग कि अगर तुम कोई सर्विस दे रहे हो तो तुम कोई सर्विस लोगे, अगर तुम कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो कोई प्रोडक्ट लोगे. इसका मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि डिमांड या फिर सप्लाई खुद ही एडजस्ट होते हैं. दैट सप्लाई कैन क्रिएट इट्स ओन डिमांड. दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट वी कम अक्रॉस. क्लियर? Okay, I'm just summing up what they said in a barter system. Barter system is a system in which you exchange goods for goods. तो तुम्हारा जो प्रोडक्शन होगा वो दो चीजों के लिए होता है, या तो तुम खुद कंज्यूम करना चाहते हो या फिर किसी और को देना चाहते हो. ठीक है? और इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ज्यादा प्रोडक्शन होना या फिर कम प्रोडक्शन होना ज्यादातर होता नहीं, और अगर वो हो गया तो भी वो टेम्पररी होता है, क्योंकि जैसे किसी को पता चलता है कि एक चीज का डिमांड बढ़ा है, दूसरी चीज का डिमांड कम है, तो हम लोग क्या करते हैं? वो जमीन, वो लेबर उस चीज के प्रोडक्शन में लगा देते हैं जिसका ज्यादा डिमांड होता है मार्केट में. ठीक है? सो वी आर शिफ्टिंग द रिसोर्सेस. एंड हियर चिल्ड्रन वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दैट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस is only because there is a demand for that commodity or service, and that is what is called as a Say's law of market. Clear everyone? Yes. इसके लिए बच्चों ये वाला जो टॉपिक है जनरली एग्जाम में कैसे आएगा, सीधा आपको दिया जाएगा एक्सप्लेन द सेज लॉ ऑफ मार्केट. तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन, अच्छा ये लॉ 1803 में किस तरीके से दिया गया था, स्टेटमेंट क्या होता है, फिर सेज लॉ ऑफ मार्केट इन अ बार्टर इकोनॉमी, और आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं आपको बच्चों लोग कि सेज लॉ मॉनेटरी इकोनॉमी में किस तरीके से फंक्शन करता है. ठीक है? सो आई थिंक विल बी एबल टू वाइंड अप विथ द टॉपिक, और माइट बी वन मोर लेक्चर वी कैन टेक. सो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे चिल्ड्रन. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, stay home, stay safe. See you in the next lecture.